So on that note, let's start. Okay, sit straight, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Now hear the disempowering sound in your head. अपने दिमाग की उस लोकेशन पर वो आवाज सुनो. The disempowering sound in your head that is completely in your own language. आपकी अपनी टोनालिटी में है. Are you able to hear it? Perfect. Now, track the location of this sound in your mind. And now, fix this location. और अब इस लोकेशन से hearing the sound very clearly in your tonality, hear it very clearly in your own language, in your own tone, in your own voice, and you can hear it very clearly. Now let's move the location. इस location को अब हम बदल रहे हैं, shift कर रहे हैं. See that the location is shifting and it is coming on your left shoulder. It is coming on your left shoulder. Hear it very clearly और उसको shift होता हुआ देखो on your left shoulder. अब ये आवाज आपके लेफ्ट शोल्डर से आ रही है. ये डिसएम्पावरिंग वॉइस अब आपके लेफ्ट शोल्डर से आ रही है. इट इज आउट ऑफ इट्स पोजिशन नाउ. और अब ये शोल्डर से भी क्लियर टोन में, क्लियर वॉइस में बोलती हुई अगेन अपनी लोकेशन को शिफ्ट कर रही है. एंड इट्स गोइंग टूवर्ड्स योर थंब. रेज योर थम्स अप. अपना लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा कर लेंगे विद योर थंब अप. यस. एंड अभी ये आवाज हम अपने थंब में से सुनेंगे. योर थंब is now speaking that disempowering sound, that disempowering statement. Your disempowering statement has reached your thumb और अब आपको अपने थंब में से वो आवाज बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है. Very clearly in your own language, in your tonality, your own choice of words. You are able to hear it completely, clearly, and loud from your thumb. Are you able to do it? Perfect. Now it's time to change the modalities. How will this dialogue sound if Donald Duck says it? The same dialogue. How will Donald Duck say it? Quack, 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 quack. Hear it very clearly. Quack, 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 quack. Or maybe the comedian that you love is saying the same thing and making you laugh. अभी सुनकर हंसी आ रही है. And now, अब तो ये डायलॉग टूटने भी शुरू हो गया. It's breaking in the voice. It's breaking down into a very childish tone. कोई बच्चा सा बोल रहा है.
तोतली सी जबान में। और अभी अभी तो ये छोटे छोटे सिलेबल्स में बिखर रहा है, ये सारा का सारा सेंटेंस ही टूटता जा रहा है। ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट डाउन, तोड़ दो इसको। ये साउंड पूरी तरह से टूट गई है। द साउंड इज ब्रोकन डाउन देयर फ्रॉम योर थंब, और अभी ये टूट कर नीचे जमीन पर गिर गई है। द साउंड्स आर टोटली ब्रोकन लाइक अ ब्रोकन ग्लास, चूर चूर। The sounds are completely separated. They has lost its meaning. कुछ मतलब नहीं रह गया उनका. And now see that there is a red color vacuum cleaner which just came in, और उसने इन सारी साउंड्स को सक कर लिया अपने अंदर. रेड कलर का वैक्यूम क्लीनर has sucked all these broken sounds और इसको पूरा सक करके अंदर को खींच लिया इस वैक्यूम क्लीनर ने. Kick that vacuum cleaner. Kick that vacuum cleaner as if it has just gone beyond the universe. इतनी जोर से किक किया आपने इस वैक्यूम क्लीनर को कि ये बिल्कुल यूनिवर्स को फाड़ता हुआ कहीं गायब हो गया. गायब, completely गायब. Put your hand down. Now, the other hand up. Right hand up करेंगे और अभी इस राइट हैंड के थंब से हम उस एम्पावरिंग साउंड को सुनेंगे. Let's just do it. Let's do it. Yes, let's just do it. अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं. जो भी आपकी एम्पावरिंग साउंड है, you can hear it from the right thumb very clearly, very loud, एकदम क्रिस्टल क्लियर. वाओ, व्हाट अ साउंड. एनर्जी आ गई है पूरी. बस यार अभी करना है. यस, ये तो अभी करना है. बस जल्दी से करना है, राइट? और अभी ये वॉइस आपके थंब से ट्रैवल करती हुई आपके राइट शोल्डर तक पहुंच गई है. Hear that empowering sound loud and clear in your own voice, speaking from your shoulder, in your tonality, in your voice, in your way, in a very energetic way. जैसे कि बस अभी काम करना है, जस्ट अभी के अभी. आपकी अपनी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, whatever you want to. Hear it in that language. Pick that up. Very, very clearly, you can just hear it. And now let the sound travel from your shoulders to the same location where you started from. The same location, the same place, same location. Let it go there and fix it in the same location. उस same location में उसको fix कर दो. Firstly, hear it in your own voice. पहले इसे अपनी आवाज में सुनो, very clearly. And now you can see कि ये आवाज आपके मेंटोर की आवाज बन गई है. The person that you believe in, your mentor, your guru, your favorite god. Now your favorite god is saying the same thing to you. It still remains the same. You can hear it very clearly in terms of I. Let's do it. I want to do it. अभी करते हैं. This loud echoing voice in your neurons, you can hear it clearly in your God's voice. आपके भगवान की वॉइस में इस आवाज को आप गूंजता हुआ महसूस कर रहे हो. आपका पूरा दिमाग, स्पेशली वो लोकेशन, गूंज रही है इस आवाज से, इस एम्पावरिंग साउंड से, विथ फुल एनर्जी. फुल एनर्जी. You can hear your God saying it to you in his voice,
your mentor, your guru, whoever you believe in, he is saying it to you. Let's just do it. अभी करते हैं. Let's just do it. Whatever is right. Hear it very clear, very loud and echoing. गूंज रही है ये दिमाग में. गूंज रही है ये आवाज. You feel so energetic, so energetic. Wow. And keeping your hands down, hear it in your head. Hear it in your head loud and clear. Playing again and again, again and again, again and again. Your guru is saying it again and again. Your God is saying it again and again. And now, if this is your reality, यही अगर सच है तुम्हारी लाइफ का, if this sound becomes your reality for every task that you want to do, for everything that you want to achieve, अगर यही रियलिटी है तुम्हारी लाइफ की, तो विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, हाउ विल बी योर लाइफ इन अनदर 6 months. आने वाले 6 महीनों में जिंदगी कैसी बन गई है? What kind of life are you living? आप अपनी लाइफ में 6 months आगे चले गए हो. विजुअलाइज that if this sound becomes your reality, if this sound has been installed in you, it has become the biggest reality of your life. How has your life changed in these 6 months? इन 6 महीनों में जिंदगी में क्या बदलाव आ गए हैं? Look at those changes. How has your life changed in the 6 months? See it clearly, the beautiful changes of your life. आप जो करना चाह रहे हो कर रहे हो. कुछ भी नहीं है जो आपको रोक दे. आप सब कुछ एफर्टलेसली और इजीली बस करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो. वन आफ्टर द अदर. हर टास्क कंप्लीट हो रहा है सक्सेसफुली. कोई पेंडिंग काम ही नहीं है. एवरीथिंग इज अ टिक डाउन. और हर एक काम जो टिक डाउन हो रहा है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आउटकम्स मिल रहे हैं 6 months में. वाओ, लाइफ कितनी बदल गई है. मूव अहेड, move ahead and see how has your life changed in another 1 year. 1 साल आगे चले गए हो आप अपनी लाइफ में. What all have you created? क्या कुछ क्रिएट कर लिया है अपनी लाइफ में? इस एक आवाज के बदल जाने के बाद जिंदगी में क्या क्या बन गया है? What all have you achieved? Because now you believe that I can do it. I am doing it. How has your life changed in 1 year? It's 2025. बदल गया है साल. You are living in May 2025. 1 साल के अंदर हेल्थ में क्या चेंजेस आए हैं? वेल्थ में क्या बदलाव आए हैं? What are the changes in your relationships around? करियर में क्या क्या ग्रोथ आ गई है? Wow, how has your career changed? Visualize that. Visualize that clearly and feel कैसा लग रहा है ये सब बदलाव देखकर, बदली हुई उस जिंदगी को देखकर, जिंदगी की अचीवमेंट्स को देखकर. कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? इन सुंदर बदलावों को देखकर, इन सब चेंजेस को देखकर, आफ्टर यू सी ऑल दीज ब्यूटिफुल चेंजेस हैपेंड इन योर लाइफ, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड. ये सब बदलाव हो चुके हैं.
हेल्थ बेटर हो गई है, वेल्थ बेटर हो गई है, क्या बैंक बैलेंस है, क्या करियर की ग्रोथ है, क्या नेटवर्क क्रिएट हो गया तुम्हारा। एक साल में जिंदगी कितनी बदल गई है। मूव अहेड, 5 साल बाद, 5 years later in your life, this sound became the biggest reality of your life. And in the next 5 years, how can you see your life? What kind of life do you want to create? If you become this action taker, तुम जो चाहते हो वो कर पाते हो without any delays. You just think of it and you just do it. You think of it and you do it. You think of it and you do it. 5 साल में क्या हो गई है जिंदगी? Wow. How will be your life in 5 years? And what will be your life in the next 10 years? Look at the big perspective. कितना कुछ जिंदगी में बना लिया. Not for my own self, but मैंने सोसाइटी के लिए कितना कुछ किया है. I am the one known for it. लोग देखते हैं मेरी तरफ. मैंने कितना काम किया है इस सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए. I am a known face. I am a known personality. People know me. I am respected, bound in bounds. मेरा नाम लेते हैं लोग. कितना कुछ बदल दिया है मैंने इन 10 सालों में. Look at those assets that you have created. Look at the luxuries of your life that you have created. Look at the way your whole family life has changed. Your parents are so proud of you. Your community is so proud of you. People are so proud of you. And you yourself, you are so proud of yourself. And now you are 90 years of age. 90 years of age. You're sitting near a beach on a rocking chair. And from there, you're thanking your God. Thank you, God. Thank you. I changed this voice. Thank you, God, कि उस दिन मैंने अपने अंदर की इस आवाज को बदल दिया था. You are thanking your God कि उस दिन उस आवाज को बदलकर मैंने ये एम्पावरिंग वॉइस चूज की थी. Say that empowering sentence with that energy. I'm so grateful to you, God, कि मैंने इस आवाज को बदल दिया और मैंने इस आवाज को चुना. I changed my reality to I can do it. And what a life I have created after that. What a life. Feel that sense of fulfillment at the age of 90. महसूस करो उस fulfillment को. Because I chose this sound as my reality. I chose this sound as my reality. And just because मैंने इस empowering sound को choose किया as my ultimate reality, I was able to create wonders. I was able to create wonders. ये प्यारी सी स्माइल
जो आज मेरे चेहरे पर है, इसमें एक अलग ही कंटेंटमेंट है, एक अलग सी फुलफिलमेंट है। इस आवाज ने सब कुछ बदल दिया। And you're giving that gratitude to your present self for picking up that sound. And you are feeling amazing. Amazing. If you're feeling amazing, the voice is installed in you. And if you're not feeling that ways, keep continuing with the feeling. इस feeling को sink in करने दो. Just feel the life that you have created and how thankful you will be at 90 years of age if this is your ultimate sound. You have created a lot of things. And whenever you are enjoying this moment of creation, you are enjoying this moment of creation. You lived the life of your choice. You created the life of your choice. Breathe in and breathe out. Be in that moment. महसूस करते रहेंगे इस फीलिंग को. And whenever, once you feel amazing about it, जब भी आपका मन करे, just rub your palms and open your eyes slowly and steadily and give me one word. How are you feeling? Maybe you're feeling, experiencing the ultimate thing, enjoying the creation, enjoying your life that you created. Hmm. नोमिता, आप थे ना पूरे प्रोसेस में कि चले गए थे? क्या बोल रहे हो? मैं सुना नहीं, ईयरफोन कनेक्ट। आप थे ना पूरे प्रोसेस में? हाँ, वो स्टार्ट होते लाइट बंद हो गई। आपने बोला ना शोल्डर तक लेके आओ, उतने में लाइट बंद हो गई। फटाफट फोन से कनेक्ट किया। राइट. फिर लैपटॉप और सब बंद हो गए थे। मुझे लग रहा था. बट फिर मैंने तभी ना दोबारा से जो लास्ट लाइंस में बोल रही थी वहीं से स्टार्ट कर दिया था. बट उसके बाद आपका कैमरा ऑफ था ना, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था. सो आई वाज इन दैट थिंग कि पता नहीं है नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा. तो फोन में आवाज भी आ रही थी, पर मेरे को समझ में आ गया। हाँ, सब हो गया पूरा प्रोसेस। नाउ आई एम हाँ. फीलिंग रिलैक्स्ड एंड मोर एनर्जाइज्ड लिटरली। पूरा जो बोलता है ना, जैसे हरिता सुबह करवाती है ना सेशन में, क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड लेट्स डू इट, वो वाली एनर्जी। नाइस. एंड हाउ वाज फॉर यू, कृतिका? मुझे तो मतलब एकदम डिवाइन फीलिंग आ गई। यू वर टेलिंग कि 90 इयर्स ऑफ एज पे जो, मुझे लगा अरे बाप रे मैं इतनी बूढ़ी हो रही हूँ। फिर उसके फिर आई वेंट देयर, तो जब लाइक आई फेल्ट लाइक गॉड वाज सेइंग समथिंग टू मी एंड आई एम लाइक थैंकिंग हिम। तो मेरे पास मुझे ऐसा है, सही में मैंने बहुत बड़ा काम किया। नाइस. वो फीलिंग आ गई, मतलब वो इंस्टॉल हो गया. अभी फटाफट से दोनों थोड़ा थोड़ा मैथ्स करो. बताओ, 15 + 7, 22। 18 + 18.
पता नहीं 13 7 26 क्या 13 7 जा 37 का तो नहीं आता, 70 का अपना 21 फोन और नंबर उल्टा 91 बोलो। 21035 462 चलो डन हो गया, डन हो गया, कोई बात नहीं, 249। मैंने बस लॉजिकल माइंड ऑन करना था, अभी हम कहीं और थे। अच्छा, अभी क्या करो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड देखो कि क्या साउंड आ रही है, चेक करो। Are you able to hear the empowering sound loud and clear or something else? And how clear, how loud is that sound? And साथ ही साथ वो जो फीलिंग है वो भी आ रही है, डिवाइन फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग, परफेक्ट, तो स्पीकर साउंड इंस्टॉल्ड। मगर स्पीकर पे बज रहा है। एंड इट्स गुड। देखो, अभी तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि अंदर से आवाज भप 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 करके बजेगी, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, अभी करना है, अभी करना है। ऐसे बजेगी वो आवाज। अच्छा, थोड़ी सी भी नहीं आई ना पुरानी वाली आवाज? नहीं, बहुत तेज आ रही थी ना, सुनाई भी नहीं देती होती भी तो। आएगी नहीं अब वो, इट्स गॉन। एंड अभी देखो, यू कैन डू इट फॉर ऑल द नेगेटिव सेंटेंसेस दैट यू एवर यूज। आप चाहो तो मतलब जो भी चीजें मैं आपको दे रही हूँ ना, इनको यू कैन यूज इन डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि ये तो एक साउंड थी, देर आर सो मेनी साउंड्स दैट कम इन, राइट? तो कभी भी ऐसा लगे, जस्ट यूज इट। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट पैर लेके आना। क्यों? क्योंकि पहले हम जो हमारा, क्योंकि बाद वाला जो है ना वो शुरू ही यहाँ से होना है, तो मैं इसीलिए, राइट हैंड डोमिनेंट होता है ज्यादातर सबका, इसीलिए उनको बोलती हूँ कि पहले लेफ्ट शोल्डर पर लाओ, क्योंकि वो बाद में खुलना होता है और थोड़ी देर के लिए रहना होता है। बट जो दूसरा पार्ट होता है कि एम्पावरिंग सुनना है, वो राइट हैंड से इसलिए बोलती हूँ क्योंकि राइट हैंड एम्पावरिंग रहता है, तो वो रखा जाता है थोड़ी लंबे टाइम के लिए। एंड आई वुड इवन सजेस्ट कि फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आप लोग मतलब जैसे अभी परसों वाली क्लास में जब रिया भी आएगी, तो यू पीपल सेट अ टाइमिंग जो तुम तीनों के लिए सूटेबल हो और आप फ्री हो, उस हाफ एन आवर में मीट ईच अदर। एंड ये जो जो टेक्निक्स में करवा रही हूँ, इनको एक दूसरे के ऊपर ट्राई करो, टेक ऑल द 3 टर्न्स, यानी एक ही बारी में हर किसी के दो दो और प्रॉब्लम सॉर्ट होते जाएंगे। अगर हम टीवी टेक्निक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक पर्सन बाकी दो पे करेगा, तो हर पर्सन की दो दो और बैड मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी। प्लस एक पर्सन जब ट्राई कर रहा है तो उसकी अपनी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, एंड इट विल हेल्प यू टू योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को करने में। और ये एक बारी की जरूरत होती है, जब भी आप एक बारी किसी के साथ कर लेते हो ना, आपको पता चल जाता है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड देन यू हैव द रिकॉर्डिंग्स एज वेल, जैसे नौमिता है, नौमिता के पास शी इज हैविंग द पेड जूम, राइट? तो यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस इट थ्रू द रिकॉर्डिंग एज वेल। रिकॉर्डिंग करो, एक दूसरे को सुनो, अपने आप को सुनो, मैंने कैसे किया, किसी और ने कैसे किया, राइट? एंड बहुत जेन्युइन लगे, इट्स टोटली योर चॉइस। बहुत नया है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, एक दूसरे को कमेंट्स देने में वैसे तो झिझकना नहीं चाहिए, राइट? बिकॉज यू हेल्प ईच अदर टू इम्प्रूव, बट बी केयरफुल ऑफ व्हाट वर्ड्स यू चूज टू से, ठीक है? चूज द एज पोलाइट वर्ड्स एज यू कैन, ताकि सामने वाले को बुरा नहीं लगे, बट एट द सेम टाइम इफ यू हैव सम सजेशन टू मेक, डू मेक इट। लग रहा है सबके सामने नहीं बोलना, लेटर ऑन एक मैसेज छोड़ दो कि आई थिंक आप ये चीज इंप्रूव कर सकते हो, राइट? डिपेंडिंग अपॉन हाउ you three people mingle with each other, right? And प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। एंड बोथ ऑफ यू, स्पेशली कृतिका एंड नोमिता, क्योंकि अब क्या है, जैसे भी कृतिका अपना ऑफर अभी क्रिएट करने वाली है, नोमिता ने अभी अपना ऑफर क्रिएट करा हुआ है, बट नोमिता आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग, अभी जब आपका ये लाइफ कोचिंग मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगा, यू कैन इवन स्टार्ट विद योर अदर साइड ऑफ इट। जैसे अभी आप बिजनेस साइड तो ले ही रहे हो, राइट? व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, कि जैसे आई एम टेकिंग पीपल टू क्रिएट कोचेस,
अगर आपको वो एस्पेक्ट भी कंफर्टेबल लगने लगे तो इवन यू कैन डू दैट एज वेल, एंड इवन इन योर ऑफर ऑल्सो एंड अदरवाइज एज वेल। आप उस चीज को एक एडिशन भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट ट्रेनिंग फॉर योर ओन क्लाइंट्स एज वेल, Yeah, राइट? that I will surely add in the bonuses. राइट, राइट। तो अभी इनफैक्ट यू वुड हैव आल्सो फेल्ट ना कि जो फर्स्ट 10 डेज हमारे थे, हर किसी का वो एक माइंडसेट जब बेस से ही क्रिएट हो जाता है ना, फिर वो घबराता नहीं है। बिकॉज नोमिता कैन अभी अभी ये ज्यादा इस चीज को समझ सकती है ध्यान कृतिका, कि जब आपके पास क्लाइंट आते हैं ना, बहुत जल्दी घबराता है कि जल्दी हो जाए, हाँ, जल्दी हो जाए, जल्दी हो मेरे जाए। मेरे लाइफ कोचेस, माइंडसेट कोचेस क्लाइंट्स है माइंड वैली के, एंड दे आर लाइक, और मैं उनको क्लाइंट्स मिलेंगे एंड आई वाज लाइक, मैं उनको समझाती थी, जैसे आपने बोला था ना कि लाइक इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड जो भी तुम्हारा क्लाइंट बेस होगा, तो बोलते सैचुरेटेड है मार्केट, ये है वो है। मैं बोलती हूँ नहीं, जो तुमसे रेजोनेट करेगा, तुम्हारी अलाइन करेगा, वो ही तुम्हारा क्लाइंट नहीं, बनेगा। मतलब ऐसे घबरा जाते हो बिजनेस के एस्पेक्ट में। एज अ कोच दे आर परफेक्ट, मेरे कोई प्रॉब्लम होती थी वो 5 मिनट में सॉल्व कर देते हैं, बट एज अ बिजनेस ओनर दे आर लाइक कैसे करेंगे, हम हो जाएगा क्या। तो वहां पे बहुत ये चीज मेरे बहुत काम है। ये भी नहीं, इससे पहले जो आप मेरे को फ्री में जो बताते रहते थे ना, वो चीजें सिर्फ वो ही बताते, वो भी उनके बहुत लाइक काम आती है, क्योंकि उन्हें किसी और से सुनना है कि हो जाएगा। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इवन नाउ दीज थिंग्स एज वेल। अभी मैं क्यों बोल रही हूँ कि अपनी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करो, ताकि ऐसा कभी नहीं हो कि मेरे सामने क्लाइंट बैठा है, मुझे पता है कि आई हैव रिसोर्सेज विद मी, आई हैव टूल्स विद मी, आई हैव टेक्निक्स विद मी, बट जस्ट बिकॉज कि मैंने उनको प्रैक्टिस नहीं करा, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि क्या मुझे अपने क्लाइंट को ही कराना चाहिए या नहीं। उल्टा, बिलीव मी, इट विल बी एन एडेड एडवांटेज इन योर ओन जर्नी। कि सपोजिटली सपोज आपके पास कोई वाकई बहुत रेस्टलेस आया है, या कोई आया है आपसे बात करते करते, अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते रेस्टलेस हो गए कि कृतिका ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। और अभी कृतिका नोज, अरे यार ओके, लेट मी डू दिस विद हिम, राइट? अब अभी कृतिका ने अगर वो एंजाइटी की वाटरफॉल टेक्निक किसी पे ट्राई की होगी, तो उसको अब किसी और पे ट्राई करने में डर नहीं लगेगा ना। नहीं की होगी तो वो एक डाउट में रहेगी, कराऊं कि नहीं कराऊं, सही रहेगा कि नहीं, गड़बड़ी ना हो जाए, मैं ठीक से करा लूंगी। अभी आपस में क्या है, वी आर ऑल फैमिली, यहां गड़बड़ हो गई डजेंट मैटर, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। यहां सारी गड़बड़ करो, अपनी टेक्निक्स में जितने फ्लॉज हैं, जितनी गलतियां हैं, करो, जरूर करो, सो दैट जब एक्चुअली आउट इन द वर्ल्ड, जब तुम किसी की हेल्प करने जा रहे हो, उस टाइम पर इसकी जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर हो भी गई, नेवर गो इन द सेल्फ सेबोटाज। देखो, तुम टेक्निक करवा रहे थे, ये तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ चुके, सामने वाले को नहीं मालूम है। ओके, उसको नहीं पता था कि तुमने कौन सा स्टेप छोड़ दिया। एंड ऑफ द डे अगर वो रिलैक्स्ड हो गया है, एंड ऑफ द डे अगर उसका आउटकम आ गया है, वो स्ट्रेस से रिलीफ हो गया है, वो काम डाउन हो गया है, इट्स डन। इवन इफ तुमने एक स्टेप छोड़ भी दिया, एक बात नहीं भी बोली, राइट? तो उस पॉइंट पे नहीं जाना, आउटकम में ये रखना है कि यार इसको मैंने रिलैक्स कराना, राइट? अगर वो आई हो गया, इट्स मोर देन डन। आई बिलीव कि मतलब ये ना सब अपना माइंडसेट है, मतलब ये टेक्निक्स है, प्रोसेस है, ठीक है, किसी का अलग होता है, किसी का अलग। जैसे भी जैसे हरिता ने ना बटरफ्लाई विजुअलाइजेशन वाला टेक्निक सिखाया, और मैंने सर्च किया ना, तो उसको अलग अलग तरीके से कोई बता रहा है, हरिता ने अलग तरीके से बताया, तो देन आई रियलाइज कि ये बस एक प्रोसेस है, मतलब एक फ्रेमवर्क है। चेंज तो हमारा अल्टीमेटली माइंडसेट ही हो रहा है ना। जैसे भी आपने एब्सोल्युटली। टीवी वाला बताया, आज आपने वैक्यूम क्लीनर कर दिया उसी को, हाँ, तो मतलब एग्जैक्ट। वो एक प्रोसेस है, बस वो कि मतलब गाइड हो रहे हैं, बाकी बिकॉज चेंज क्या है है जो ना कि आउटकम। देखो, माइंड तो आपका सब कुछ ही सुन रहा है, वो तो हर चीज मान हाँ रहा है। उसने वैक्यूम क्लीनर को भी किक कर दिया, उसने टीवी को भी किक कर दिया, उसने टीवी तोड़ भी दिए, राइट? उसने सब हाँ कुछ कर दिया। तो तभी मैं आपको बोलती हूँ, योर माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड ओनली इफ यू नो हाउ टू मेक इट योर फ्रेंड। अभी तक हमें यही नहीं पता है कि हम इसको अपना दोस्त बनाएं कैसे, इसीलिए हमें इवेंचुअली जब हमारे अकॉर्डिंगली चीजें नहीं होती हैं, तो हमें लगता है कि ये मेरा दुश्मन ही है, ये कभी मेरी सुनता ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मुझे नहीं पता कि उसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी कोडिंग लैंग्वेज ही तो हम चेंज कर रहे हैं, और देखो कितना सटली कर रहे हैं। अब देयर आर हाँ सो मतलब मेनी थिंग्स मैंने सीखी किसी और वे में है,
लेकिन जब मैं वो किसी के साथ बैठ के करवा रही होती हूँ तो मेरे, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, अभी जैसे आप लोगों की भी आईज क्लोज थी, तो जब भी मैं आपके साथ कर रही होती हूँ ना, अभी अब अगर आप रिकॉर्डिंग में जाओ तो आपको बहुत सारी जगह ऐसे दिखेंगी जहां मेरी आईज क्लोज्ड है व्हेन आई एम सेइंग समथिंग, बिकॉज आई ऑल्सो रीच देयर। वो मुझे जो दिखता है, जैसा फील होता है, वट एवर आई फील, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे मैं तुम लोगों के साथ पहुंच जाती हूँ वहां पे। तो मुझे जैसा जैसा भी लगता है कि इसको क्या फील कराना है, और ये चीज ने, आज की टेक्निक ने नोमिता पे तो बहुत वर्क किया होगा, क्योंकि शी इज एन ऑडियो। इसके यहाँ पे जैसे गूंजती हैं आवाजें, ये तो ऐसे बदली होंगी कि सच में अंदर लाउड स्पीकर ही चल रहा होगा। सच में डीजे वाला पड़े। अभी वो अभी बात कर रहे थे, आई ट्राइड, तो बस वो अभी भी वही, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। लेट्स डू इट, और वही आएगा, सुनना भी नहीं है उसको। बट देन अब देखो, मैं आपको ना, पहले मैंने आपको दो मोडालिटीज दी जिसमें हम सारी मोडालिटीज चेंज कर रहे थे, राइट। आज की इस टेक्निक को हम थंब टेक्निक ही बोलते हैं, ठीक है। एंड थंब टेक्निक इज, we usually say it as, thumb technique is used to mute your inner critic, mute your inner critique। मेरे अपने ही अंदर एक क्रिटिक बैठा है जो हर वक्त मुझे रोकता रहता है कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, जो मुझे मेरी पेन्स याद दिलाता है। ही इज माई क्रिटिक। हमें अगर अभी आगे मैं आप लोगों को ना, जब कृतिका ने तो की हुई है वॉल्ट डिज्नी वाली, तो जब वॉल्ट डिज्नी हम करेंगे ना, तो उसमें यू विल रियलाइज दिस कि हमारे अंदर ही एक क्रिटिक, हमें बाहर वालों की तो जरूरत ही नहीं है। मेरे ही अंदर एक आइडेंटिटी है जो हर वक्त मुझे रोकता ही रहता है, मत कर, मत कर, मत कर, मत कर। तो अभी अगर मेरे को समझ में आ जाए कि मेरे को अपने क्रिटिक को हैंडल कैसे करना है, जैसे आज मैंने म्यूट कराया, ठीक है। मैंने जब आपको एंजाइटी की वो करवाई थी, वाटरफॉल टेक्निक कराई थी, इट वॉज फॉर काइनेस्थेटिक पीपल, क्योंकि वो प्योर फीलिंग थी। स्ट्रेस कहाँ है? इट्स अ फीलिंग। एंक्शियसनेस क्या है? इट्स अ फीलिंग, इट्स एन इमोशन। मैं अपसेट हूं, मुझे बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग हर्ट, ये सारी चीजें क्या है? जितने भी इमोशंस हैं, दे आर काइनेस्थेटिक। तो जितने भी काइनेस्थेटिक लोग हैं उनके ऊपर वाटरफॉल बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि आप पानी फील कर रहे हो, वो स्पंज बन गया है, आपकी बॉडी के ऊपर पैचेस लगे हैं, दीज आर ऑल फीलिंग्स। आप महसूस कर रहे हो कि मेरे ऊपर पैचेस लगे हैं, मैं उनको वॉश कर रही हूँ, पानी आ रहा है, पानी मेरी बॉडी के एक एक हिस्से में जा रहा है। तो वो क्या था? इट वॉज फॉर द काइनेस्थेटिक पीपल, बिकॉज दे फील इट टू द फुलेस्ट। वो एंड तक चले जाते हैं कि यार, मतलब उनको तो पूरा पानी का फ्लो फील हो जाता है। पानी ठंडा है। पानी ठंडा है, राइट। एंड दैट इज व्हाई आई केप्ट सेइंग कि इट इज, द टेम्परेचर इज ओके, द प्रेशर इज ओके, द द प्लेस इज सेफ। अब ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ? सो दैट किसी को डर नहीं लगे। हो सकता है कि किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं माइंड में, माइंड तो कोई भी फाइल खोल सकता है। दैट इज वाई मैं न्यूरॉन्स को साथ साथ बता रही हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ हो। ये जो भी तुम जगह विजुअलाइज कर रहे हो, उस जगह पे प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है, तुम फिसलोगे नहीं, तुम बिल्कुल, गहराई भी उतनी है, डेप्थ भी ठीक है, हाइट भी ठीक है, तुम्हारा प्रेशर भी बिल्कुल ठीक जा रहा है, टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये चीजें मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि वो एंग्शियसनेस को बढ़ाए नहीं, राइट। अब उस पर्सपेक्टिव से जब वो हो रहा था, मैं तब नहीं बता सकती थी ना, अभी बता रही हूँ। अब वो प्योरली के पर्सन के लिए था, काइनेस्थेटिक के लिए। आज प्योरली ऑडियो पर्सन के लिए था, कि कोई क्लाइंट आ गया, वो आपको ऑडियोज ही सुनाए जा रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली याद है, उसने मुझे इस दिन इस टाइम पे ये वर्ड्स बोले थे, ऑडियो एवन में, राइट। अब कोई मुझे, मैम मुझे ऐसा फील होता है, मैम मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है, आई कैन फील दैट वाइब, आई कैन फील दैट वाइब। अब जो पर्सन मेरे साथ इस लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो के है, मुझे दिख रहा है इस सिचुएशन में। एंड इट इज ऑल्सो सिचुएशनल एज वेल, कि वो मुझे क्या बता रहा है उस सिचुएशन में, वो के है। अगर वो मुझे बार बार बोल रहा है, मैम यू डोंट नो हाउ आई फेल्ट, आप मतलब कोई नहीं समझ सकता मुझे कैसा महसूस हुआ, मुझे कैसा फील हुआ, मतलब वो के में जा चुका है। अब इसके ऊपर मुझे जो भी टेक्निक लगानी है वो के वाली लगानी है। जो मुझे सुना रहा है वो मुझे वो है, आई कैन स्टिल रिमेम्बर, मुझे एक एक चीज याद है, वो उसने ये पहन रखा था, वो ऐसे बोल रही थी, वो ये कर रही थी, विजुअल है, उसको सब दिख रहा है कि मुझे अभी तक जब वो कर रहा है ना, कि वो यहाँ खड़ी थी ऐसे कर रही थी, वो जब ये है, यानी उसके, जब somebody इज गिविंग दैट बाउंड्री लाइक दिस, मैम वो ऐसे करती है, ऐसे, दीज एक्शंस ऑफ अ पर्सन इज टेलिंग मी कि वो जो भी मुझे बता रहा है ना, वो उसके बिल्कुल आंखों के सामने है इस टाइम पे।
इसी वो उसको विजुअलाइज नहीं कर रहा, उसकी आंखों के सामने वो देख पा रहा है, उसने मुझे ऐसे बोला, ऐसे खड़ी थी, ये कर रही थी, ऐसे कर रही थी। जब उसके हैंड मूवमेंट इतने ज्यादा चल रहे हैं, वो सिचुएशन उसके बिल्कुल आंखों के सामने है, अब मुझे उसके ऊपर विजुअल टेक्निक लगानी है, समझे? तो नाउ एज अ कोच, नाउ आई नो कि मैं जब एक पर्सन के साथ डील कर रही हूँ, तो मेरे लिए वैक क्यों मेरा फाउंडेशन था, वो मुझे नहीं बोल रहा कि मेरी आंखों के सामने है, पर मुझे एज अ कोच पता लग गया है। वो नहीं बोल रहा कि मुझे सुनाई दे रहा है, मैं ऑडियो, पर वो उसकी बात बता रही है, मुझे सुन रहा है, आई कैन, मुझे एक एक वर्ड याद है, वर्ड याद है, वर्ड क्या है? ऑडियो, राइट? मैं आप आगे चल के आपको कुछ कुछ वर्ड्स भी बताऊंगी जिनसे आपको पता लग जाता है कोई पर्सन व्हेन ही इज यूजिंग दीज वर्ड्स, तो वो विजुअल में यूज कर रहा है, वो ऑडियोज में यूज कर रहा है, कि वो काइनेस्थेटिक में यूज कर रहा है। वो फेज 2 में हम करेंगे, अभी हमारा फेज 1 चल रहा है विच इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हमारा फेज 2 स्टार्ट होगा विच इज वर्किंग एज अ कोच, कि अब यही टेक्निक्स मुझे जब एज अ कोच यूज करनी है, तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना। तो अभी तुम जब प्रैक्टिस स्टार्ट करो, तो गलतियां हो रही हैं, डजेंट मैटर, जब मैं एज अ कोच तुमको बहुत सारी चीजें बताऊंगी, तो तुम्हें बहुत कुछ अपने आप भी रियलाइज हो जाएगा कि हाँ वो मैंने टेक्निक कराई थी, मैंने ऐसे किया था, अच्छा वो उसने ऐसे किया था तो उसका ये इफेक्ट मेरे पे हुआ। एंड बाय दैट टाइम क्या होगा, आप लोगों के पास अपने एक्सपीरियंसेस भी होंगे टू शेयर, कि इसे इसमें ये हो गया। अब हो सकता है कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए, हमें ऑन द स्पॉट नहीं पता लगा, इट्स ओके, कम विद योर प्रॉब्लम्स। तो बोल रही हूँ मेक मिस्टेक्स, इट्स वेरी गुड, मिस्टेक से और अच्छे से सीखोगे। अरे मैम हमने ऐसे किया, ये तो हुआ ही नहीं, सो आई ऑल्सो गेट टू नो, चाहिए ये गलती हुई है, ओके इसको ऐसे कर लेना, नेक्स्ट टाइम ऐसे ट्राई करो, राइट? और इनफैक्ट हमेशा सामने वाले से ये फीडबैक जरूर लो। देखो, whenever the technique gets over, आपने कभी देखा कि मैं the last thing that I say is tell me how are you feeling? इसके दो रीजंस होते हैं। पहले तो जो भी आप उस वक्त फील कर रहे हो, जैसे कृतिका ने बोला आई एम फीलिंग डिवाइन, नोमिता ने बोला कि मैं बिल्कुल उसी फीलिंग में हूँ, एनर्जेटिक। तो द थिंग इज उस मोमेंट में आप जो बोल दो, द वर्ड दैट यू आर यूजिंग, दैट इज द एग्जैक्ट वाइब्रेशन दैट यू आर इन। इस वक्त आप डिवाइन वाइब्रेशन में ही थे, उस वक्त आप एनर्जेटिक वाइब्रेशन में ही थे। अब उस टाइम पे आगे चलकर जब मैं आपको बताऊंगी, तो स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ दीज वाइब्रेशंस, कि इस वाइब्रेशन में आप क्या सोचना चाहते हो, इस वाइब्रेशन में कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सोचकर उसको होते हो ना देखना चाहते हो, वो वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट कर लोगे ना। हम राइट वाइब्रेशन में ही तो नहीं होते हैं ना जब कुछ गड़बड़ होती है। अभी जब मैं उस वाइब्रेशन में हूं, मुझे क्या चाहिए? मेक अ विश, राइट? अभी मैं डिवाइन वाइब्रेशन में हूँ, थैंक यू गॉड मुझे ये दे दो, मैं तो हूँ उस वाइब्रेशन में, व्हाई नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, राइट? मैं हूँ एनर्जेटिक वाइब्रेशन में, तो भी मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रही हूँ, सुन रही हूँ कि हाँ ये तो काम हो गया, वाह मजा आ गया, could be anything. So as per your own choices, start using it, right? On that note, आज का हमारा सेशन यही ओवर होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस वाला, परसों मिलेंगे लाइफ कोचिंग के लिए। परसों मेरा ना बहुत दिनों से मन है, मुझे तुम लोगों को लव वाइब्रेशन कराना परसों 8:30 बजे ना कॉल। है। वेंसडे हम्म। 7:30, 7:30। अच्छा सॉरी। अपना, हाँ, कल है मेरे, कल तो मैं इंटरव्यूज भी कॉल, क्लाइंट कॉल्स तो पूरा। अच्छा मैंने कल ट्यूसडे को रखा, मैं कहा अच्छा मंडे को तो क्लास होती है अपनी इतनी सारी। हाँ बिफोर दिस कॉल कट्स मुझे वो बता देना जो आप शीट हाँ वाला अभी बता रहे कर लो, फिर अभी 8:30 मेरा क्लाइंट कॉल है, स्क्रीन थे। प्रेजेंट करके दिखा दो। Done. चलो, ऑन दैट नोट सी यू टुमारो कृतिका। हाय। आई शेयर द डे 2 ऑल्सो, कल के ग्रेटिट्यूड का। बाय। बाय।